Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोस में हमने आपको एक्सरसाइज 5.3 बताई थी। आज चलते हैं आपके एक्सरसाइज 5.4 की ओर, अर्थात ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। इन दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 डॉट 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी दी हुई एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। So we will first of all we find its A. The first term is 121 and D, that is common difference 117 minus 121, it is minus 4, right? And let the first negative term इक्वल टू ए एन। मान लीजिए ए एन उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, एन टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव है। देयरफॉर नेगेटिव टर्म ऑलवेज लेस देन जीरो, सो इट इज ए एन इज लेस देन जीरो। देयरफॉर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन जीरो। और देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, इट इज 121, ए फॉर 121 एंड प्लस एन माइनस 1 and d for minus 4 less than 0, and simplified it we get 121 minus 4n plus 4, then we multiply minus 4 with n minus 1, we get minus 4n plus 4 less than 0, 4n transpose in this side, then we get 121 plus 4, this one become the 125 less than, transpose that side, it will be 4n. So n equal to, that is n greater than 125 upon 4, that is n is greater than 4 3 या 12, 4 बन जा and 1 upon 4, यानी जो n की वैल्यू है वो 31 and 1 upon 4 से बड़ी होगी, that is the negative term. So therefore 31 से बड़ा जो हमारा नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होगा, that is first term, which is greater than 31, either 32, so that is 32nd term, that is n equal to हमारा कितना हो गया 32। therefore a 32, या हम ये कह सकते हैं 32nd, therefore the first negative term of the AP is 32nd, and 32th term is the first negative of the this AP. After that, in question number 2, saying that the sum of the third and the 7th term of the AP is 6 and their product is 8. Find the sum of the first 16 term of the AP. For this, question number 2, let the first term of the AP equal to small a and common difference equal to D according to first condition, saying that the sum of the third and 7th term of AP is 6, that is A3 plus A7 equal to 6, A3 for A plus 2D and A7 for A plus 6D, it is 6. Simplified it, we get twice A plus 8D equal to 6. Take the common 2 as a common, A plus 4D, it will be 6, 2 3 is 6, and we get A plus 4D equal to 3. So A equal to, we get 3 minus 4D, it is 3 minus 4D. According to second condition,
second condition, and their product. It means product of the third and seventh term is 8. According to second condition, A3 multiply A7 equal to 8 and their product is 8. इनका दोनों का सम 6 था और प्रोडक्ट 8 था. आप यहाँ A3 फॉर A प्लस 2D और A7 फॉर A प्लस 6D equal to 8. Put the value of A. Put A equal to 3 minus 4D. Then we get 3 minus 4D plus 2D. Another bracket. 3 minus 4D plus 6D equal to 8. After that, I simplify it. Simplify हो जाएगा हमारा. Then we get here 3 minus 4D plus 2D, that is 3 minus 2D. And another bracket 3 minus 4D plus 6D, it is plus 2D equal to 8. That is A minus B, A plus B. So it will be 3 square minus 4D square equal to 8. That is 9 minus 8 equal to 4D square. So 4D square equal to 1. That is D square equal to 1 upon 4. So D equal to आप होगा plus minus 1 upon 2. Here when D equal to positive 1 upon 2, then A equal to A minus 3, A equal to 3 minus 4D, that is 3 minus 4D. It is 3 minus 4 multiply 1 upon 2. 2 to the 4. Then we get A equal to 3 minus 2. It is 1. Then we have to find the 16th term. Find the sum of the first 16 term of the AP. So Sn equal to n by 2, 2A plus n minus 1 into D. It is the formula for the sum of the first n term of the AP. So we have to find the first 16 term, that is S16 we have to find. So replace n with 16. 16 upon 2, 2, A for 1, 16 minus 1 and D for 1 upon 2. By simplifying it, 2 से ये कट जाएगा आपका 8 टाइम. It is your 8. 2 1 या 2 plus 16 minus 1 15, that is 15 upon 2. Then we get 8 multiply 2 2 या 4 और 15 19 upon 2. 2 से ये कट जाएगा 4 टर्म और 19 4 जाएगा 76. यानी फर्स्ट 16 टर्म का जो सम है कितना होगा 76 होगा व्हेन d इक्वल टू पॉजिटिव 1 अपॉन 2 है. और दूसरा लेते हैं व्हेन d इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. when d equal to minus 1 upon 2, then a equal to हमारा कितना हो जाएगा 3 minus 4d, that is 3 minus 4 multiply minus 1 upon 2. 2 से ही कट जाएगा 2 टाइम. It will be a equal to 3 plus 2 because minus minus become 2. It is 5 equal to 5 and equal to this. Then S16 equal to 16 upon 2 bracket 2a plus 16 minus 1 into d. 2 से 16 कट हो जाएगा 8 टाइम, that is 8. 2 multiply a for 5 plus 16 minus 1, that is 15 multiply d for minus 1 upon 2. After that
by solving it, 8 bracket 2010 और minus 15/2, minus 1/2 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे minus 15/2 हो जाएगा. It will be 8 multiply 2 10 या 20, 20 minus 15 या that is 5/2, 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम, so it is your 20. So sum of first 16 term is hence the sum of first 16 term of the AP, that is 76 और 20, या तो आपका 76 होगा या फिर आपका 20 होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस D, that is positive 1/2 और negative 1/2. After that, your question number 3, in which saying that a ladder has rungs 25 centimeter apart. किसी लैडर में जो उसके रंग्स हैं यानी पेडिस्टल हैं वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस की, इनके बीच की जो गैप है डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर है. द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, और उनमें जो रंग्स का जो डिक्रीज होते हैं यानी लेंथ ऑफ रंग्स डिक्रीज होती है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है, यूनिफॉर्म इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, यानी बॉटम का 45 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, यानी बॉटम के 45 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर से लेकर के टॉप के 25 सेंटीमीटर तक एक यूनिफॉर्म लेंथ के हिसाब से एक समान रूप से वो डिक्रीज होती है. इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, अगर टॉप वाला और बॉटम वाला जो रंग्स है वो 2.5 मीटर अपार्ट है, तो आपको बताना है कि 25 सेंटीमीटर अपार्ट 2.5 मीटर अपार्ट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स. तो रंग्स के लिए कितनी वुड की जरूरत होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रंग्स ऑफ द लैडर अपार्ट ईच अदर. apart each other, that is 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लगे हुए हैं. इसके बाद दिया हुआ है लेंथ ऑफ द बॉटम रंग, bottom rungs equal to 45 centimeter, that is first rung, and length of the top rungs is 25 centimeter. Distance between bottom and top rungs, बॉटम एंड टॉप के बीच में 2.5 मीटर डिस्टेंस दी है, कितनी है 2.5 मीटर है, दैट इज 250 सेंटीमीटर. तो एक उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर की है. तो अब हमें बताना है टोटल जो हमारे रंग्स होंगे, नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे. देखिए मान लीजिए ये कोई आपकी लेडर है और इस तरीके से वो लेडर रखी हुई है, राइट. अब इनके बीच में जो गैप आ रहा है 25 सेंटीमीटर का आ रहा है. अब हमें ये काउंट करना है इसमें बीच में हमारे कितने टोटल रंग्स हमारे कितने हैं. तो अब यहाँ जो गैप आएंगे 25 सेंटीमीटर के, अगर 250 में डिवाइड करते हैं तो 10 गैप आ जाएंगे. जब 10 गैप आएंगे तो टोटल रंग्स होंगे वो 11 होंगे, ठीक है 11 रंग्स होंगे. या मान लीजिए अगर 5 आते हैं तो हमारे रंग्स होंगे वो 6 होंगे, क्योंकि एक रंग्स बढ़ जाएगा. 2 रंग्स के बीच में एक गैप आता है, 3 रंग्स के बीच में 2 गैप आते हैं. इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ रंग्स होंगे वो कितने हो जाएंगे. नंबर ऑफ
rungs इक्वल टू 250 अपॉन ए के बीच में डिस्टेंस 25, डिस्टेंस बिटवीन टू rungs ऑफ लैडर ईच अपार्ट, उनके बीच में डिस्टेंस 25 और प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज बाय सिंप्लीफाइंग इट इज 10। सो नंबर ऑफ रंग्स आपके हो गए 11। हमारे नंबर ऑफ रंग्स कितना हो गए 11 हो गए। इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो बॉटम रंग्स हो वो ए का काम करेगा आपका, दैट इज ए इक्वल टू हो गया कितना, ए इक्वल टू का 45 और डी इक्वल टू हुआ वो उनके बीच में जो रंग्स का ए इक्वल टू 45 और एल इक्वल टू हमारा हुआ जो टॉप वाला सबसे टॉप का कितना 25 और एन हुआ हमारा कितना 11 रंग्स है। हमें निकालना है टोटल बोट्स रिक्वायर्ड टू फॉर द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बोट रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो लेंथ ऑफ द बोट आपको फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द बोट रिक्वायर्ड फॉर rungs, that is Sn equal to n by 2 और a plus l, that is सॉल्व करेंगे आप। n हमारा 11/2 और a हमारा 45 और l हमारा 25। सॉल्व करते हैं तो 11/2 मल्टीप्लाई 25 और 45 प्लस करेंगे 70 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 70 कट करेंगे तो 30 टाइम कट जाएगा, 35 टाइम कटेगा। इसका फिर 11 से मल्टीपल कर देते हैं, 11 मल्टीप्लाई 35, 35 बन जाए 35 एंड 3 38, दैट इज 385 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। यहाँ रंग्स के लिए हमें जो वुड चाहिए उसकी जो लेंथ होगी 385 सेंटीमीटर होगी। आफ्टर दैट your next question number 4 in which saying that the houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of houses preceding the numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it, find the value of x। यानी किसी जो हाउसेस रो है उसमें 1 से लेकर के 49 तक के नंबर पड़े हुए हैं, तो आपको ये शो करना है कि एक नंबर x ऐसा भी है जिसके x से पहले वाले सभी नंबर्स का सम और x के बाद वाले सभी नंबर का सम इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नंबर ऑफ question number 4 numbered on the house, numbers on the house, हाउसेस में नंबर पड़े हुए क्या है 1 2 3 डॉट 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 49। तो टोटल नंबर कितने हुए इक्वल टू 49, ठीक है। नंबर बिफोर का x बिफोर का x आपका x -1 होंगे। मान लीजिए कोई हमने 35 नंबर सेलेक्ट किया, 35 से पहले कितने होंगे 34 होंगे। अगर मान लीजिए कोई नंबर हमने 28 नंबर सेलेक्ट किया, 28 से पहले जो नंबर होंगे 27 होंगे, एक नंबर कम होगा। नंबर बिफोर द x इक्वल टू x -1। अब नंबर आफ्टर x के बाद 49 टोटल थी, उनमें से x माइनस कर दीजिए, 49 - x। अब हुआ क्या, कोई भी जो नंबर होगा, अगर मान लीजिए हमें उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर बिफोर द x दैट इज x (1) इक्वल टू इसके बाद वाले नंबर
का सम, 49 माइनस एक्स का सम अगर आप फाइंड करें, यानी एक्स के बाद वाले नंबर का अगर सम फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई सीक्वेंस बना हुआ है, ये एक्स है और पूरा टोटल सीक्वेंस आपका 49 है, तो अगर हमें जो चाहिए अब इधर वाले नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इस 49 के सम में से एक्स वाले नंबर को माइनस कर देंगे, राइट। एक्स वाले नंबर माइनस कर दें तो क्या बचेगा, हमें वही नंबर रह जाएंगे जो हमारे एक्स के बाद के, दैट इज हमारा एस 49 माइनस एस, हाँ एक्स, एस 49 माइनस एस एक्स। अब हम इस इक्वेशन को बना करके इसमें से सॉल्व करते हैं। आप ये देखेंगे ए इक्वल टू हमारा कितना है 1, इस सीरीज में ए इक्वल टू 1 है, और डी इक्वल टू हमारा कितना है 2 माइनस 1, दैट इज इट इज ऑल्सो 1। अब एस एक्स माइनस 1 अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 अपॉन 2 2a प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एस 49 लिखेंगे आप, क्या लिखा जाएगा 49 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी, आगे माइनस एस एक्स के लिए आप x अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी फॉर 1, सॉरी डी लिख दीजिए n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा इसका जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगा दिए। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 1 ऐसे रहेगा अपॉन 2 यहाँ पर आपका 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस x माइनस 2 और इंटू 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो गए, इक्वल टू 49 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 49 में बन गया तो बचा 48 मल्टीप्लाई 1, आगे माइनस x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। आगे इसको सॉल्व करें और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको मिलेगा x माइनस 1, 2 बन 2 और 1 से मल्टीपल करेंगे तो x माइनस 2, दैट इज 2 प्लस x माइनस 2, आफ्टर दैट इक्वल टू 49 अपॉन 2, अगर आपका 2 बन 2 और 48 कितना हो जाएगा 48 बन 48, दैट इज 2 प्लस 48, राइट। आगे जरा जाएंगे आप माइनस x अपॉन 2, 2 बन 2 और x माइनस 1, दैट इज 2 प्लस x माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, x माइनस 1 अपॉन, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ x बचा, दैट इज x माइनस 1 अपॉन 2 रह गया आपके, ठीक है। इधर आपका ये 50 और 49, यानी 49 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 2 माइनस इधर आपका 2 में से बन गया 1 बचा, दैट इज x प्लस 1 अपॉन 2, और सभी के डिनोमिनेटर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ ये 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, कि वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, और 49 का 50 से मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा आपका 2450, 5 9 45, 4 20 एंड 4 24, दैट इज 0 माइनस इधर आपका कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का और माइनस का एक्स, राइट, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा इस तरह 1.2 से 1.2 कट जाएगा, आपका बचा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के माइनस एक्स कट गया, दोनों तरफ से इंसान है,
इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2450, दैट इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2450, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2450 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे दैट इज 1225, सो एक्स इक्वल टू होगा आपका अंडर रूट प्लस माइनस 1225, तो दैट इज प्लस माइनस 35, बट जो नंबर जो होते हैं उस पर नेगेटिव नंबर नहीं होती किसी गाउस नंबर पर, इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस 35, दैट इज नेग्लेक्टेड, and x equal to 35, that is your answer, and this is value your acceptable value, that is x equal to 35. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 5, that is the last question of this exercise. In this question saying that a small terrace at a football ground comprise of 15 steps, यानी किसी फुटबॉल ग्राउंड में एक छोटी सी टेरेस जिसमें 15 स्टेप्स हैं, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, जिसकी प्रत्येक की जो लेंथ है वो 50 मीटर है, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, और सॉलिड कंक्रीट से बने हुए हैं, ईच स्टेप हैज द राइज 1/4 मीटर, यानी प्रत्येक स्टेप का जो राइज है, राइज दैट इज द 1/4 मीटर है, एंड ट्रीड्स दैट इज द पेडेस्टल इज द ऑफ 1/2 मीटर, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर टू द बिल्ट द टेरेस, यानी इस टेरेस को बनाने में कितनी कंक्रीट लगेगी, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब देखिए हमने लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टेप इन टेरेस इक्वल टू 15, नंबर ऑफ टेरेस स्टेप्स इन द टेरेस इक्वल टू 15 स्टेप्स हैं। इसके बाद हाइट ऑफ राइज, यानी राइज कितना है, ऑफ स्टेप, राइज ऑफ स्टेप इक्वल टू 1/4 मीटर, एंड ट्रीड ऑफ स्टेप 1/2 मीटर, वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप हमारा कितना हो जाएगा, इस स्टेप की बात होगी तो इसकी जो लेंथ होगी 50 मीटर, हाइट होगी 1/4 मीटर और ब्रेथ होगी 2 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप इक्वल टू L इंटू V इंटू H, दैट इज L होगी वो आपकी 50 मीटर और 1/4, दैट इज द डायमेंशन आर 50, 1/4 और 1/2। ये आप एक छोटा सा एक स्टेप है वो हमारा क्या बना, एक क्यूबॉइड की शेप ले लेगा जिसकी लेंथ होगी 50 मीटर, हाइट होगी 1/4 मीटर और ब्रेथ होगी 1/2 मीटर। इस तरह से 3 डायमेंशन ऑफ दिस। आगे आप सॉल्व करेंगे इसको, 2 से कट जाएगा 25 टाइम, दैट इज वी गेट 25/4 मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, यहाँ समझने वाली बात है, सेकंड स्टेप की बात आती है तो ये जस्ट डबल हो जाएगा इसका। अभी हम इतना ले रहे थे, अब इसको आधा यहाँ से करेंगे तो देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो स्टेप इस तरह से हो जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, जस्ट इसका डबल हो गया। इस तरीके से आपका अब देखिए यहाँ जो पहले स्टेप में आया था उसका ही डबल, 2 × 25/4, दैट इज 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इट इज ऑल्सो 25/2 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप का हो गया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हो गया आपका इस तरह से। A इक्वल टू होगा आपका 25/4 एंड D इक्वल टू होगा आपका 25/2 माइनस 25/4। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, एलसीएम हो गया आपका 4, दैट इज 50 माइनस 25, सो D हमारा हो गया 25/4 और N हमारा कितना, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने, N इक्वल टू 15। Now we have to find the total volume of the concrete for the terrace.
therefore total volume of concrete, total volume of the, क्या फाइंड करना है हमें इसमें, total volume of concrete for the terrace, that is Sn. Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. वैल्यू पुट कर देंगे हम, n फॉर हमारा कितना 15 अपॉन 2a, a कितना हमारा, दैट इज 25 अपॉन 4, 15 माइनस 1 इंटू डी हमारा 25 अपॉन 4. आगे बढ़ते ही कट जाएगा 2 का 15 अपॉन 2, दैट इज 25 अपॉन 2 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4, 2 से 7 टाइम बढ़ जाएगा, 2 से 2 टाइम. आगे बढ़ते हैं 15 अपॉन 2, एडिशन दोनों का 2 हो गया, दैट इज 25 प्लस 25 7 जा, हाँ 175. 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 2, 2 से ये 100 टाइम बढ़ गया, 2 से ये 50 टाइम बढ़ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75, 750 मीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट टू मेक द टेरेस. ओके, विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश. आज के लिए वीडियो में इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सारे वीडियो, एक सभी वीडियो आसानी से पहुंच सकें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए गुड डे.